السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے آنے والے فائنینشیل ایئر کا، بجٹ 2022-23 کیسا رہے گا؟ یہ بہت عام سوال ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس جگہ پہ ڈالر کا ریٹ جا چکا ہے، جو پیٹرول پرائسز ہیں، جو فائنینشیل کرائسس ہے، تو اس میں جو ہے ہم کس جگہ پر آگے پہنچ رہے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک انڈسٹری جس سے بہت ساری انڈسٹریاں وابستہ ہیں وہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے خاص طور پہ کہ یہ انڈسٹری جو کہ بہت ساری انڈسٹریوں سے وابستہ ہے، تو اس انڈسٹری میں کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں، اور حکومت سے آپ کے کیا مطالبات ہیں۔ تعارف کرائیں گے گیسٹ پینل کا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے جناب احمد چنائے صاحب، معروف بزنس لیڈر ہیں، آپ سابق چیف بھی ہیں CPLC کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر ریاض صاحب، آپ ڈپٹی چیئرمین ہیں ہاؤسنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ سب کمیٹی کے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبد الوہاب ایدھی صاحب، آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹیکس کے معاملات کو، کتنا ٹیکس جمع ہوگا اور کن کن شعبوں میں ہوگا، آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سیف اللہ صاحب، جو کہ CEO ہے DX گروپ کے، آپ معروف بزنس مین ہیں، بزنس لیڈر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو احمد چنائے صاحب فرمائیے، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب جو چیلنجز ہیں، اور اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اب بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے اب جو ہے وہ آگے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، تو کم سے کم اسی ایک چھوٹی سی بات سے مارکیٹ پہ اعتماد آیا ہے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج سے بھی تعلق ہے، اسٹاک پر تھوڑا سا اعتماد آیا ہے، تھوڑا سا روپیہ کو کہ بہت اس کی ویلیو گر گئی تھی، لیکن تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بجٹ سے کچھ امید وابستہ ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا نازک موڑ ہے۔ جو اس وقت پاکستان کے فائنینشیل حالات ہیں وہ کوئی ڈیزائربل نہیں ہیں، اور ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں کہ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارا حال سری لنکا کی طرح نہ ہو، لیکن میں اس فورم پہ جو ہے وہ بانگ دہل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ پاکستان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری اپنی جو ہے انڈیجینیس پروڈکٹس ہیں۔ پاکستان ایک ویٹ پروڈیوسنگ نیشن بھی ہے، رائس پروڈیوسنگ نیشن بھی ہے، شوگر پروڈیوسنگ نیشن بھی ہے، تو یہ اور کاٹن پروڈیوسنگ نیشن بھی ہے۔ سر یہ ساری بات ہے، لیکن ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا نا 75 سالوں سے، اپنی پروڈکٹس کو ہم نے عزت نہیں دی، میڈ ان پاکستان کو رسپیکٹ نہیں دی، تو اس پہ تھوڑا سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، پاکستان کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مینجمنٹ صحیح ہو۔ آپ نے پچھلے 2-3 دن میں دیکھا کہ جب گورنمنٹ کا ایک اناؤنسمنٹ آتا ہے کہ جی ہم یہاں ہیں اور اپنا ٹینیئر پورا کر کے جائیں گے، تو اس کے بعد کچھ حالات بہتری کی طرف آٹومیٹکلی جانا شروع ہو گئے۔ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو ہمیں کم کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان پر اعتماد کریں۔ گو کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ آج اگر آپ فیول پرائسز دیکھیں تو ہم سے مہنگا فیول تو دبئی میں مل رہا ہے، ہم سے مہنگا فیول تو امریکہ میں مل رہا ہے، یورپ میں مل رہا ہے، اور لیکن سر وہاں کے لوگوں کی ہم سے زیادہ کمائی بھی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں، مہنگائی تو وہاں بڑھ رہی ہے، لیکن وہاں پہ کم سے کم پر کیپٹل انکم زیادہ ہے، ہمارا پر کیپٹل انکم کا بہت بڑا ایشو ہے۔ اسی طرح ہمارے خرچے وہاں جیسے خرچے نہیں ہیں، وہ بھی کم ہیں ہمارے۔ آپ دبئی کے خرچوں کو یا امریکہ کے خرچوں کو یا یورپ کے خرچوں کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے ایک وہاں پہ انکم بھی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاورٹی ایلیویشن ہونی چاہیے تھی، اور پاورٹی ایلیویشن میں جو منیمم بیس ریٹ ہمارا 18,000 20,000 کا پے کر وہ ہے، اس کو 25,000 تو کر دیا گو کہ گورنمنٹ نے آتے ہی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حتمی اناؤنسمنٹ نہیں آیا۔ تو جب تک یہ پاورٹی ایلیویشن کی ہم بات نہیں کریں گے، ہمارے نچلے طبقے کو اوپر لانے کی بات نہیں کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ساری مراد جو ہے وہ اپنا انڈسٹریلسٹ طبقے کو مل جائے، جو بڑا طبقہ ہے اس کو مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے احمد چنائے صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، اور سیف اللہ صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، فرمائیے جو ہماری خاص طور پہ انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں، آپ سب لوگ ہیں، اس سے بہت ساری انڈسٹریز وابستہ ہیں، اس پہ کس وقت کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو مجھے یہ فرمائیں کہ کچھ بوم ہے، سیل ہو رہی ہے، یا آپ تھوڑا مشکل کے اندر ہیں، یا آپ امید رکھتے ہیں کہ جناب آگے چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ جی تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، سیل کے حوالے سے تو میں کہوں تو سیل کو بہت زیادہ ایفیکٹ تو نہیں ہوئی۔ یہ ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے تھوڑا سا ٹیمپریریلی اگر آپ کہیں تو فرق پڑا ہے۔ ہم کچھ عادی بھی ہو چکے ہیں یہ فلکچویشن
यही हमारी ऐसे ही चलती है, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं, फ्यूल के भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में एक इस लिहाज से पोटेंशल है कि मुश्किल वक्त को, मामलात को बेयर करने का या उसको आगे लेके चलने का। तो मैं इस लिहाज से इसको पॉजिटिव समझता हूँ कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम देखें, अभी जो पिछले 1 साल से अगर हम बात करें तो रेट्स, इन्फ्लेशन जो है, प्रॉपर्टी की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें और स्पेशली कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा शूट करे। अच्छा, जैसे चुनाय साहब ने फरमाया कि ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में चल रहा है और वो यहाँ भी चल रहा है। हमें एज ए बिल्डर क्या चैलेंज है? वो चैलेंज ये है कि आज हम किसी बिल्डिंग को लॉन्च करते हैं, किसी विला को लॉन्च करते हैं, हमारी सेल प्राइस आज लॉक होती है और उसने बनना 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 3 साल बाद है। इन्फ्लेशन रेट को अगर हम कोई उसमें मार्जिन दे सकते हैं, कुशन दे सकते हैं, तो वो सिर्फ हम 10 to 15% तक दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन भी है, सेल को भी देखना है, तो लिमिटेशंस है। तो जब 2 साल बाद बनाने जाएंगे, 3 साल बाद बनाने जाएंगे और ये जो प्राइसेस शूट कर रही हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारा लॉस होगा। उस लॉस को कवर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट के बाद बाकी चीज़ों को बचाने के लिए फिर हम उसको सर्कल को बढ़ाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो रुपए की कीमत है वो स्टेबल होती है, हमारा जो मटेरियल की कॉस्ट है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं कंट्रोल, कोई इस तरह की पॉलिसी लाती, तो हम लोग बहुत इजी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने ख्यालात का इजहार किया, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है। तो अब्दुल वहाब ईदी साहब, क्या ये मसला जो बयान कर रहे हैं सैफुल्लाह साहब, तो वो तो चैलेंज है यकीनी तौर पे कि प्राइसेस जो बढ़ रही हैं और इसी वो फिर चैलेंज आ जाता है कि जब कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं उसके बाद जब वो यानी फाइनल पोजीशन में पहुंचते हैं तो कुछ और सूरत हाल हो जाती है। लेकिन टैक्सेस जो है जिसके आप एक्सपर्ट हैं उसकी क्या सूरत हाल है? क्या अब ज़्यादा टैक्स हम समझेंगे लगेंगे, कम टैक्स लगेंगे? टैक्स को किस तरह से देख रहे हैं हम? बिलाशुबा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त। लोगों को अपना घर बनाना है, यू नीड अ प्रॉपर्टी। अगर कोई बिज़नेस सेटअप चाहिए, यू नीड अ प्रॉपर्टी। इंडस्ट्री लगानी है, आपको जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ जो इंडस्ट्री है आपकी या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब कहीं जाकर 2 साल पहले, 1 साल पहले पिछली हुकूमत ने इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। आलम यह था हमारे मुल्क के अंदर कि हमने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा तक नहीं दिया था। इसको हम एक इंडस्ट्री समझते भी नहीं थे कि ये तो एक मिस्त्री काम है, ईंटें जोड़कर बना लिया, कोई इमारत बना ली। नहीं, इमारत बनाना या घर बनाना या फैक्ट्री बनाना ये भी एक इंडस्ट्री अपने आप में है और इससे लाखों लोग मुंसलिक रहे हैं। जहाँ तक बात है टैक्सेशन के हवाले से, प्राइस के हवाले से, तो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, जो आलमी इन्फ्लेशन आया है, डॉलर रेट ऊपर गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपने लिए छत बना सके, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई हो गई है। ठीक है ना। अब हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे जो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, सीमेंट्स या आपका आयरन, सरिया, उसको रिलीफ दे, उसमें सब्सिडी दे और उसको कम करे। लेकिन मसला हमारा ये है कि हम जुड़े हुए हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। IMF हम कुछ भी सब्सिडी देते हैं, IMF में रोकता है कि आप ये ना करें। रिसेंटली एग्जाम्पल ये है कि हमारे पेट्रोल की प्राइसेस 30 रुपये बढ़ा दी गई हैं। मज़ीद एक्सपेक्टेशन है कि और बढ़ेंगी, एनर्जी प्राइसेस और बढ़ेंगी। लेकिन अगर ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है मुल्क के अंदर करने वाला, वो और बढ़ेगा। जी नासिर रियाज साहब फरमाइए, सर आप क्या समझते हैं कि कराची चैम्बर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी आप ये हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सब कमेटी से वाबस्ता हैं, तो आपकी तरफ से, क्योंकि कराची चैम्बर में हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर डेलीगेशंस आ रहे होते हैं, कोई भी हुकूमत जाए आए सारे लोग जो है हाज़िरी देते हैं, तो आपकी जो है वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? ये फरमाएं पहले तो। गवर्नमेंट को सुनती हैं और सुनती हैं तो अब आपके क्या मशवरे हैं बजट के लिए खासतौर पे? जहाँ तक आप कराची चैम्बर की बात करते हैं, कराची चैम्बर से तो हम हमेशा चाहते हैं कि कराची के जो भी ताजिर और सनतकार हैं उनका हर तरह से ख्याल रखा जाए और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। कराची चैम्बर लार्जेस्ट चैम्बर है पाकिस्तान का, जिसके 25,000 मेंबर्स हैं और डायरेक्ट मेंबर्स और 55,000 इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं जो एसोसिएशंस को मिला के हैं। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट को, हमारा तो यही मुतालबा ज़्यादातर है कि
जिस तरह मिसाक जमहूरियत बनाए इस तरह मिसाक मईशत एक होनी चाहिए कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हो कि जब गवर्नमेंट चेंज हो तो पॉलिसी चेंज ना हो, ताकि जो टैक्स के हवाले से कोई एमनिस्टी दी हुई है या कोई फैसिलिटी दी हुई है तो वो एकदम ना चेंज हो जाए, सारे गवर्नमेंट चेंज हो तो वो चेंज ना हो। और जहाँ तक रियल इस्टेट का ताल्लुक है, मैं आपको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर इस वक्त रियल इस्टेट का ही है और इसके साथ 100 ऑफ एलाइड इंडस्ट्रीज़ इसके साथ शामिल हैं। तो इसमें जितनी अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी सेक्टर में नहीं है। जब ये सेक्टर बढ़ता है तो सारी इंडस्ट्रीज़ साथ मिलके उसमें तरक्की होती है। आप यहाँ अगर आज आप देखें कराची में हाई राइज किस तरह से बन रही है, रियल इस्टेट में है, इसी तरह हैदराबाद की तरफ निकल जाएं तो मेन रोड पर कोई जगह इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जो हर जगह सोसाइटीज बन रही है सारी पूरे पाकिस्तान हर जगह आप किसी भी शहर में चले जाएं आपको नई हाउसिंग स्कीम्स मिलती हैं, पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है। जी हाँ, तो यही रियल इस्टेट सेक्टर तो बहुत अच्छा है, इसको तो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देके और इसको बढ़ाना चाहिए, चूंकि इसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री, सरिया इंडस्ट्री और 100 ऑफ किस्म की एलाइड इंडस्ट्री है, फिर उसमें लेबर्स जो इन्वॉल्व होगी, जो लेकिन सर जब कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसा कि सैफुल्लाह साहब फरमा रहे थे, और फिर जब यही जो हाउसिंग यानी कि फ्लैट्स हैं या मकान है ये महंगे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने कि ये डॉलर वैल्यू जो है इसको स्टेबल रखना चाहिए। देखिए हम जो इसमें जो मेजर इन्वेस्टमेंट ठीक है पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो हमारे मेजर फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्स है, वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। कोई अपने भाई के लिए, कोई बच्चों के लिए, अपने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, वो अगर $1 लाख यहाँ इन्वेस्ट करता है, 5 साल बाद पता लगता है कि वो $90,000 वापस लेके जा रहा है, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? पीछे कुछ अर्सा अच्छे रहे, जब डॉलर रेट स्टेबल रहा, आप देखें बहुत बूम हुआ प्रॉपर्टी में, क्योंकि बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है, मुझे इदी साहब आप फरमाएं कि वेरी क्विक आप कोई खास कोई एडवाइस देना चाहेंगे इस बजट में टैक्सेस के हवाले से कि कितने गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने चाहिए, ये क्या पेशरफ करनी चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे रिसेंटली आप सब सुन रहे थे कि IMF की कुछ शराइत आई हैं सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से। तो क्योंकि मैं मेंबर हूँ कराची टैक्स बार एसोसिएशन का, भी हमारी जो सबसे बड़ी टैक्स बार एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान की, उस फोरम से हमने भी कहा था कि सैलरीड क्लास को आप टैक्स ना लगाएं। और अभी आपको पता होगा पूरे कराची जो है पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है, उसे इंक्रीज ना करें, इसको इंक्रीज ना करें इसको, लेकिन उसको मजीद इंक्रीज ना किया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमारा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है, 14% 50% इन्फ्लेशन रेट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है हमारा वो होता है सैलरीड क्लास तबका, जो उनके और कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, इसी तरह इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स है वो भी जो है ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि खाम माल या जो भी ऐसी मशीनरी है जिसे पाकिस्तान की ज़रूरत है उसको ज़रा छूट दी गई है। ये तो अच्छी स्टेप है, क्योंकि देखें हमारा मुल्क एक अरसे से इम्पोर्टेड कंट्री बनता जा रहा था, हमारी चीज़ रेडीमेड इम्पोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको तो आप इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो ब्रांडेड आइटम्स है, लेकिन हर चीज़ इंपोर्ट करने के लिए होती है। आपकी मुल्क में इतनी लेबर है और सस्ती लेबर है, आप फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करें कि वो आए, इंडस्ट्री लगाएं, लेबर को जॉब क्रिएट करें, और जब इंडस्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो जब तक आप फिनिश प्रोडक्ट को हायर रेट पर टैक्स नहीं करेंगे और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम नहीं करेंगे और इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तो मुल्क ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। टाइम एक ब्रेक का और हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, बजट आपके सामने, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आवाम को, और ख़ास तौर पे बात हो रही है कि हमारी जो एक बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, इसमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें सुफियान आदिया साहब ने ज्वाइन किया है जो कि चेयरमैन आबाद है साउथ रीजन के। सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मशवरे हैं हुकूमत को आपकी जानिब से, आबाद की जानिब से? देखिए, आबाद की जानिब से जो फेडरल गवर्नमेंट को बजट प्रपोजल्स गए, एक तो हमने स्टील इंडस्ट्री के हवाले से जो स्टील कॉस्ट इस वक्त बहुत हाईएस्ट रेट पे चली गई, 2,15,000 रुपये टन हो गई है, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं। हमने इनको ये रिकमेंड किया है कि आप जो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं ना उसको आप वेव ऑफ करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और आपको जो सरिया पहले को $300 का था तो आपने उसको $700 पे रखा हुआ था, तो एक प्रोटेक्टेड रखा हुआ था, तो ऑलरेडी आपको टैक्सेस तो मिल रहे थे, अब उसके और डबल टैक्सेस मिल रहे, तो आपका टैक्स टारगेट तो पूरा हो रहा है। तो आप एटलीस्ट उस ड्यूटीज़ को कम कर दें ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाए। इस सिचुएशन में जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी 2 साल पहले 3 साल पहले अनाउंस्ड हो गए
उनकी तो कॉस्टिंग ही आउट हो गई, क्योंकि उनने जब डॉलर था 115 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये का, उस टाइम पे अपनी कॉस्टिंग करके प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए और माल बेचा। आज 200 रुपये का डॉलर हो गया है। उस 200 रुपये के डॉलर के अंदर स्टील प्राइसेस और सीमेंट और सारा जो कॉपर है और स्टाइल है और जो ड्यूटीज़ हैं और जो सारा इंपोर्ट मटेरियल है, वो तो प्रोजेक्ट फिजिबल ही नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सकेंगे। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसको अगर सस्टेन करना है तो वो उसको कोई प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको कोई उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, कोई फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। आप लॉन्ग टर्म पे ना करें, एक आध साल के लिए ज़रूर कर दें, ठीक है, जब तक इंटरनेशनली स्टील प्राइस नीचे नहीं आता। सेकंड हमारा प्रपोजल ये है कि इस वक्त दुनिया भर में जो फर्स्ट बायर है उसको जो है स्पेशल रेट्स पे फाइनेंसिंग दी जाती है, उसको बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए जाते हैं ताकि वो अपना फर्स्ट हाउस परचेज कर सके। फर्स्ट हाउस परचेज लोन दिया जाता है, ये नहीं कि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या मार्केट को बूम करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि इस वक्त जो हाउसिंग शॉर्टफॉल है ना, हाउसिंग डिमांड तो मीट कर लें अगर, मगर लोगों के परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो इतने मकानात खरीद सकें। तो ये हमारे 2-3 मेन सजेशन है। अहमद चुनैनी साहब फरमाइए, ये जो स्पीड है इस वक्त डॉलर की, हम कभी बात करते थे कि जनाब कहीं डॉलर 200 का ना हो जाए, और 200 का हो गया। अब जो 200 के कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि जनाब ये नीचे आ सकता है या इससे कुछ उम्मीद छोड़ दें बस? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि डॉलर जो है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे ज़रूर आएगा। इस वक्त 3-4 ऐसे बड़े फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डॉलर का जो है वो अपराइज हुआ। एक खबर ये थी कि जी पाकिस्तान में जो है वो जो फॉरेन फंडिंग आती है वो बंद हो जाएगी, IMF रिफ्यूज़ल कर देगा, सऊदी अरब से जो है वो रिन्यूअल नहीं होगा, चाइना से नहीं आएंगे पैसे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन एक एक करके ये चीज़ें ईज आउट हो रही है, मैं समझता हूँ, और जो रिक्वायर्ड फंडिंग है पाकिस्तान के डॉलर को बरकरार रखने के लिए वो आ रही है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उम्रे का सीज़न था, डॉलर की बाइंग जो है वो बहुत हुई है, बेतहाशा लोग पाकिस्तान से उम्रे के लिए गए हैं, और ओपन मार्केट में जो है वो इस पर एक दबाव भी आया है। तीसरा, जाहिर है जब इंटरनेशनली प्राइसेस सब चीज़ों की बढ़ गई, हमारी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई, तो जो इंपोर्ट प्राइसेस हैं उसमें डॉलर की एक ज़्यादा डिमांड आ गई, ज़्यादा खपत आ गई। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक में कह दिया कि भाई आप अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डॉलर से खुद मैच करो, जिसकी वजह से एक गैप आना शुरू हो गया। तो ये एक सारा पैनिक था जिसकी वजह से हमने 205 तक डॉलर देखा, और अब हम रिसेंटली देख रहे हैं कि 199, 198 के रेंज में आ गया है। मैं समझता हूँ कि 10-12 तारीख को बजट आ जाएगा, इसके बाद IMF की फाइनल ट्रांच का जो अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो फिर जो है वो चीज़ें ईज आउट होना शुरू हो जाएंगी और डॉलर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे जरूर आ जाएगा। यानी आप उम्मीद रखते हैं कि डॉलर जो है वो बेहतर पोजीशन के अंदर आ जाएगा। सैफुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं जो बाइंग पावर है वो लोगों की डिस्टर्ब हुई है, या आप जो बात कही जाती है, जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जनाब गुर्बत कहाँ है, आप शॉपिंग मॉल्स में जाके देखें लोग शॉपिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लोग रेस्टोरेंट में जाके देखें तो लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। वो कि मेरे पास भी इसका जवाब मौजूद है, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप शॉपिंग सेंटर में या मतलब लग्जरियस एरियाज़ में जाते हैं तो आप गुर्बत देखने नहीं जाते। जहाँ गुर्बत है वहाँ जाके देखें तो बहुत गुर्बत है। एक बात तो ये है, आप थर पार्क एरिया में चले जाएं, बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ बहुत मसाइल भी हैं। एंड एट द सेम टाइम दूसरे लिहाज से आपको बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुए हैं। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने की मेन काज टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बाकी जो इन्फ्लेशन है और ये चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। दोनों एस्पेक्ट चल रहे हैं, जिनका बिजनेस चीज़ें इस चीज़ से रिलेटेड है। तो लोगों का जो ख्वाब है अपना घर का, किसी भी फैमिली का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है, इसके पास घर नहीं है, कि किसी तरह हमारा अपना घर हो जाए और हम किराए पर जो रहते हैं किराया ना देना पड़े। तो लोग अपना ख्वाब अब पूरा कर पाएंगे? देखिए, ख्वाब अब हम सब के सामने है कि ख्वाब अब पूरा होना जिसे कहते हैं उसका रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। रिस्क बढ़ने की वजह ये है कि सिर्फ जो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हिट पे यही है, इन्फ्लेशन की अगर बात करें। और दूसरी बात ये कि जब एज ए बिल्डर अगर मैं बात करूं, हम लोग जब कोई बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हम चाहें कि यार एटलीस्ट स्टील और सीमेंट जो मेजर एलिमेंट है उसको हम किसी प्राइस पे लॉक कर लें या वो स्टॉक कर लें, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है।
स्टील और सीमेंट की इंडस्ट्री ये कहती है कि जिस वक्त आपने मटेरियल उठाना है आप उसी वक्त हमें पे करेंगे, उससे पहले बुकिंग भी नहीं करते। तो ये जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ये वाकई घर का जो ख्वाब है वो मुश्किल होता जा रहा और जो मैंने बात की कि जो रेस्टोरेंट देखकर या मॉल्स को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं, वो बिल्कुल भी वो गलत अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी देखें 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है। कराची की हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ की आबादी है। अगर चंद जगहों पे चंद 100 लोग आपको नज़र आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर तरफ ये सूरत हाल है। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर है, ख़ासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका है। आप लोग ज़्यादा बेहतर सब जानते हैं कि वो 15-20 तारीख के बाद जो है मुश्किल में आ जाता है, उसके लिए शुरू का 15 दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाते हैं। तो जहाँ महंगाई बढ़ रही है वहीं पर ये इंपॉर्टेंट बात है, लोगों की आमदनी भी बढ़नी चाहिए और उस पर जो है ख़ास फोकस हो, ताकि लोगों का महीना जो है सुकून से गुजर जाए और जो गुर्बत है उसका मुकाबला कर सकें। उसके लिए ज़रूरी अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है और हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है इस पर जो है एक्शन लेना। और वो एक्शंस क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे सामने जो लोग मौजूद हैं, इनके भी क्या ख्यालात हैं, जज्बात हैं, इनसे जानेंगे। ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और ख़ासतौर पे जो बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं, उस पर लोगों के क्या ख्याल है, इजहार है, हम जानना चाहेंगे। जी फरमाइए जनाब। सवाल मेरा ये है बिल्डर हज़ार से, क्या हमारी जो डील्स की इतनी कमी हुई, क्या आपकी भी चीज़ें ऐसी सेल नहीं हो रही या आपकी वैसी की वैसी हो रही हैं? चले सुफियान साहब आप फरमाइए। देखिए, स्टेट बैंक की जो भी रिपोर्ट है और स्टेट बैंक का ये अंदाज़ा है कि ये कमोबेश इसमें से 50 to 60% पैसे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गए, लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करी है, जो एक बहुत खुशाइन बात है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त चल रहा है, तो पाकिस्तान ओवरऑल में $16 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट हुए हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो $16 बिलियन है वो कराची ही आए हो, वो ऑल ओवर स्प्रेड है पूरे कंट्री का, क्योंकि ज़ाहिर है KPK में है, पंजाब में है, सिंध पूरे में है, तो पूरे खित्ते में उसका एक डिसबर्समेंट होता है, तो वो उसका तयन करना एकदम से आसान नहीं है। और मेजर चंक बेशक हो सकता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में होगा, मगर वो पूरे उसमें सेग्रीगेटेड है। ठीक है, तो लोग यानी कि मसद उम्मीद रखें कि जो ओवरसीज़ जो हैं जो प्रॉपर्टीज़ लेते थे वो आगे भी लेंगे, लेकिन उसमें हमारी जब ओवरसीज़ से बात होती है तो उसमें जो यहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं या बहुत सारी इश्यूज इस शोबे के अंदर मौजूद है, तो उससे वो कभी कभी डर भी जाते हैं ओवरसीज़। बिल्कुल वो डर जाते बात को इसमें एक्शन लेना होगा। बिल्कुल वो डर जाते हैं। और अब तो जो गूगल और इस तरह इंफॉर्मेटिव ज़माना इतना आ गया है कि वो हर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को पहले से चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे ना उसके रिव्यूज़ आते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना वो लिखना शुरू हो जाते हैं। वंस अगर किसी की कंप्लेन होती है ना तो उसकी बेताशा कंप्लेन गूगल पे खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है मुख्तलिफ पेजेस के थ्रू। तो वो अब तो दुनिया एक समेट लिए एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोग। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, रिसेंटली अप्रैल के आर्टिकल के मुताबिक अगले 7 साल में 92% पाकिस्तान ग्रो करने चला है कंस्ट्रक्शन में। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो एक अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस का आगाज़ करने जा रहा है, तो हुकूमत से यही सजेशन है कि इनिशियल स्टेज होता है, आपको EPO ऑर्डर लेना पड़ता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर। उस ऑर्डर के बाद ही आप एक बिज़नेस को इनिशिएट कर सकते हो, उसमें आसानी होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ वेस्ट को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। फ्लूएंट जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो उसको वेस्ट है उसको कहाँ हम लेके जाएंगे? जी नासिर साहब, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने ये। जी फरमाइए। बात ये है कि कंस्ट्रक्शन एक पूरा पैकेज होता है जो गवर्नमेंट देती है, जिसमें जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी है, कई किस्म और भी NOCs होती हैं, उसमें हर चीज़ें देखी जाती है कि उस इलाके में जब वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट पूरा उसको देखती है। उसके NOC होते हैं कि पानी की लाइनें उसमें मौजूद है, उतना इलेक्ट्रिक उतनी अवेलेबल है, वेस्ट कहाँ निकाली जाएगी, उसके बगैर वो प्रोजेक्ट होते नहीं, पास नहीं होते। चाइना की भी यही डिमांड थी कि जनाब 1 विंडो ऑपरेशन चाहिए हमें 10, यानी हम चाइना को भी इसी लाइन पे लगा रहे थे कि जनाब 10 जगहों पे जाओ। जी बात यह है कि 75 साल की मुल्क की तारीख के अंदर जो है वो हम किसी इंडस्ट्री में 1 विंडो ऑपरेशन नहीं ले आ पाए। जी
تو یہاں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ہم سب کی ڈیمانڈ تو یہی ہے, حکومت سے مختلف سطح پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوتے جو ہے وہ وقت تو ضرور لگے گا, اور آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہے. چائنا نے بالکل صحیح ڈیمانڈ کی تھی سی پیک کے اس میں کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ ونڈو آپریشن سے جائیں, اور وہ چلے بھی جاتے ہیں اس لیے کہ وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو جاتے ہیں, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ خاص طور پہ یہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کافی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بات بالکل صحیح ہے رزاق بھائی کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو تمام پروجیکٹس ہیں وہ ون ونڈو آپریشن پہ جانے چاہیے. بلڈرز کو یا ڈیولپرز کو یا کنسٹرکٹرز کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی لمیٹیشن کہاں ہے, کیسے چلنا ہے. نسلہ کی جو بات آئی ظاہر ہے اس میں بھی شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈر کی ناسمجھی کی والی بات ہے, یا پھر ڈپارٹمنٹس کے آپس کی جو ہے وہ ایک کھینچاتانی ہے جس کی بنا پر حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ زمین کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے, اور اس پر حکومت کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشنز کریٹ کریں تاکہ حکومتیں جانے اور آنے سے کوئی فرق نہ پڑے. بس میں لاسٹ کوسچن لینا چاہوں گا. بس اب پاکستان کی جو مڈل کلاس پیپلز ہیں ان کو لون لائک پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, اس طرح کی اسکیمز اور اس طرح کا لون کیوں نہیں دیا جا رہا کہ ایک مڈل کلاس پرسن بھی اپنا ہاؤس بائی کر سکے؟ تو یہ بہت کم چیز جو ہے. اس پر تو پچھلی گورنمنٹ میں پورا پروگرام لانچ ہوا تھا, میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم جو تھی اس کے اندر کافی کام ہوا تھا. لیکن دیکھیں اور اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز بھی کرنی چاہیے. از اٹ ناٹ انف؟ یہ انف نہیں ہے. پاکستان میں بہت سے مڈل کلاس اور بہت سے ایسی لوگ موجود ہیں. بالکل صحیح, آپ کے بالکل صحیح خیالات ہیں, آپ کو مطالبہ آ گیا. ہماری جو یوتھ ہے وہ انڈسٹری کی طرف زیادہ نہیں ہے, انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اس انڈسٹری میں کتنا اسکوپ ہے, کتنا کام ہے, تو اس چیز کو وہ بہت زیادہ سوچ نہیں رہی. تو ہماری انڈسٹری یعنی یہ کنسٹرکشن جو بھی انڈسٹری ہے یہ اس اویئرنیس کے لیے کیا کام کر سکتی ہے؟ ہم نے تقریب رکھی تھی, ایک امریکن کمپنی ہے ری میکس, وہ ون آف دی لارجسٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے, اور اس نے ایک فرینچائز ابھی پاکستان میں کھولی ہے, اور اس کا ایک انسٹیٹیوشن بھی بنا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے. پروگرام ان کا باقاعدہ وہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھی اپنے پروگرامز کو لے کر جائیں گے جس طرح وہ یو ایس کے اندر ہے, اور یہاں پر بھی وہ ٹریننگ سیشنز کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ابھی آباد نے GIZ ایک جرمن بہت بڑی NGO ہے, اس کے تحت کچھ تقریباً 50 کے قریب بچوں کو ڈپلوماز کروائے اور ان ہاؤس اپنے بلڈرز کی سائٹس پہ جا کے ٹرین کروایا, اور اس کو 35,000 ان کو انسینٹیوائز بھی کیا پر منتھ. ٹھیک ہے, اور مزید اس کو پروگرام کو سیکنڈ فیز میں لے کے جا رہے ہیں. ابھی NED یونیورسٹی کے جو فریش گریجویٹس ہیں اس کو بھی ہم ٹرین کرنے جا رہے ہیں اپنی سائٹس پہ, ان کو ہم جیب سے آؤٹ آف پاکٹ پیمنٹ. بالکل بالکل, اس پہ فوکس ہونا چاہیے. سیف اللہ صاحب فرمائیے, ابھی پچھلے جو 2-3 مہینے گزرے ہیں نا وہ بڑے پولیٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے بزی رہے سیاسی جو صورتحال کے اندر. اب آپ امید رکھ رہے ہیں کہ جناب ملک میں جو ہے, کیونکہ ایک کیوس کی صورتحال تھی, انویسٹمنٹ کو اس سے بڑا نقصان پہنچ رہا تھا, لوگ تشویش میں تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو وہ اس وجہ سے بھی انویسٹمنٹ کو اور فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اب کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جناب چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ جی بالکل, ہم تو امید کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ ایک بیان سے ڈالر سٹیبل ہونا شروع ہو گیا, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی, اسٹاک ایکسچینج پہ ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا. اور ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہٹ ہوتی ہے جب بھی پولیٹیکلی کوئی انسٹیبلٹی ہوتی ہے یا کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے. تو ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں میں جو سچویشن اس میں بہت سفر کیا, تو اب کچھ دنوں سے پازیٹیو بھی پا رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلدی بہتر ہو جائے گی. جی احمد چنائے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, ہم کاروباری لوگ ہیں, اور کاروباری لوگ ہمیشہ ہر گورنمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ہم مؤثر طریقے سے اپنی ریپرزنٹیشن. سر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی آپ بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے آپ کا ایز اے CPLC چیف. امن و امان کی صورتحال جو ہے اس پر بھی آپ فرمائیں ویری کوئک کلاس میں, کیونکہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے, بہت ساری وارداتیں روزانہ سننے میں آ رہی ہیں. بہت بڑے چیلنجز ہیں, اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہا ہے. اس کی 2 بیسک وجوہات ہیں. ایک تو ہم لا اینڈ آرڈر یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نااہلی کہہ لیں, اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کر رہی ہیں. لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم یہ کرائم کریں.
मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक बड़ा मौसर रोल अदा करना चाहिए और ये जो स्ट्रीट क्राइम का मैनेज है उसको ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। हमने मुख्तलिफ सतह पर उनको तजावीज़ दी है कि किस तरह ये काम हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची को जो डिजिटलाइज़ करने की बात है वो एक ख्वाब ही है जो आप पिछले 15 साल से हम सुन रहे हैं और उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया और मेरे सामने जो मौजूद ख़वातीन और हज़रात हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे एक सियासी जो सूरत हाल थी उसमें क्राइसिस रहा है पिछले 2-3 महीने, और जब इस तरह क्राइसिस हो तो फिर आगे इन्वेस्टमेंट आना, माशी हालत बेहतर होना जो है वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिज़नेस लीडर्स हैं जो हमारे आज के प्रोग्राम में भी साथ थे, वो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी और ख़ास तौर पे इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है आवाम को जो रिलीफ मिल सकता है वो इस हुकूमत से उम्मीद लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी। हमारा ये प्रोग्राम और इसके साथ साथ हमारे दूसरे प्रोग्राम भी आज न्यूज़ के सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, सब्सक्राइब करें आज टीवी के डिफरेंट चैनल्स और उसको ज्वाइन करें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम मिल सके। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।